Good morning to one and all. Today we have to move further. Yesterday we start with the new unit of the analytical chemistry, that is nothing but the classical methods of the analysis in the titration, and we have to focus on the redox titration. In the redox titration we started with the one that all the basic terms about the redox titration. Then we have seen the what is the oxidizing agent, what is the reducing agent. Okay, and in this particular topic we have to focus on the two things. One is the redox titration for the one electron system and the redox titration for the multi electron system. Okay, from that one electron system we have started. Just I am sharing the screen. I think so we have finished up to the 5 cm cube, right? Hello. Yes, sir. Okay. Now we have to talk about in the vicinity of the equivalence point. अभी in the vicinity of the equivalence point मतलब क्या 9.8, 9.9 like this. Here we have considered the 9.9 cm cube. अभी हम 9.9 cm cube की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमने 10 cm cube सॉल्यूशन लिया है. अभी vicinity मतलब क्या जस्ट एक ड्रॉप से क्या होने वाला है, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला है. तो इट इज a 9.9 cm cube of this particular C4 plus solution is there. Then you can see Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा 9.9 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 19.9. Fe2 प्लस का कैसे रहेगा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 19.9. अगर इसका रेशियो लेंगे आप Fe2 प्लस बाय Fe3 का कॉन्सेंट्रेशन का, तो इट विल बिकम द 0.00101. लाइक दिस. ओके, तो कंफ्यूजन था. सी अभी कॉमन टर्म जो है वो कट हो जाएंगे. ओके, कॉमन टर्म मतलब 0.01 और ये 19.9 ये कट होने के बाद 0.1 डिवाइड बाय 9.9 बचेगा. उसका रेशियो लेंगे तो 0.010 रहेगा. बाय अप्लाइंग द रेसिप्रोकेशन अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. इसका लॉग लेना है, आप लॉग लेंगे तो उसका आंसर आएगा -2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम द प्लस. ई सिस्टम आपको दिखेगा कि इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या दिख रहा है, पोटेंशियल बढ़ा ना. जब एंड पॉइंट आता है तब पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है इन दिस केस. ओके, एंड अभी पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जो पहली केस देखे थे एट द इनिशियल. ओके, बाद में हमने देखे आफ्टर द मतलब पोटेंशियल बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट. अभी पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्ट 10 cm क्यूब डालने के बाद ऐसा कंसीडर करते हैं हम कि 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन रहेगा तो इक्वल लगने वाला है. So 10 cm cube of this particular solution is added. At that time, E equivalence point is equal to E system is equal to E system is equal to E0 Fe2 plus Fe3 plus minus this formula which corresponds to the E equivalence point. Therefore, E system is equal to some mistake is there, just I'm rectifying it. दिस इज द वन. ये पहला आपको पता है, हमने यूज किया है अभी तक के कैलकुलेशन में.
अभी दिस करस्पॉन्ड टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। अभी सेकंड जो इक्वेशन है दैट इज फॉर द सेरिक, तो सेरिक के लिए कैसे आएगा, दैट विल बिकम सी सेरिक 4 प्लस एंड सेरिक 3 प्लस, कॉपी पेस्ट किया है। ओके, दिस इज लिटिल बिट द करेक्शन इन दैट। ओके, अभी यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे अभी क्या रहेगा, लिसन वन थिंग, कि दोनों भी चीजें रहेंगी, मतलब सेरिक भी रहेगा और फेरिक भी रहेगा, राइट। तो इसलिए हमें इक्विवेलेंस पॉइंट निकालते समय दोनों की एडिशन करना पड़ेगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू, अब इसको एडअप करना है, एडअप करना है बोले तो आप E0 के टर्म एक साथ लेंगे। ओके, E0 के टर्म एक साथ लेने के बाद Fe3 plus Fe2 plus plus E0 C4 plus C3 plus, okay, minus 0.059 16, ओके, इधर भी 16 है, log to the base 10, this is the concentration of this particular Fe2 plus, okay, divided by Fe3 plus into C3 plus divided by C4 plus, okay, then at the equivalence point फिर क्या होगा, neither the analyte nor the tight film remains in excess, therefore all the Fe2 plus ions will get oxidized, that is Fe3 plus becomes equal to C3 plus, Fe2 plus is equal to C4 plus, therefore by substituting this 2 equivalence point is equal to E0 Fe3 plus Fe2 plus plus E0 this seric 4 plus seric 3 plus, okay, then E equivalence point will be E0 Fe3 plus Fe2 plus plus E0 C4 divided by 2। तो अभी ये तो आपको पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन और दैट सेरिक इज लाइक वन का इक्विवेलेंस पॉइंट पे आने वाला ईएमएफ ये मैच होना चाहिए, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट सही है, ऐसे पता चलेगा। दीज आर द थ्योरेटिकल वैल्यूज दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ओके। Now potential beyond or after the equivalence point. Now E system is calculated using the redox couple of the seric serous। अभी क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में मतलब क्या है, 10 cm आपका Fe2 प्लस सॉल्यूशन था, बराबर है, Fe2 प्लस 10 ml था, वो पूरा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसमें बचने वाला क्या है, अगर आप उधर एक्सेस में सेरिक का सॉल्यूशन डालते तो ऑफ कोर्स दैट सेरिक विल बी इन द excess, therefore for the calculation of the E cell after the equivalence point you have to consider the next redox couple, that is nothing but a seric serous. When 10.1 cm3 of the seric plus solution is added, that is 0.1 cm3 of the seric plus solution is in excess, then अभी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, seric 4 का concentration और seric 3 का। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपका कितना होगा, 20.1, क्यों, 10 ml ऑलरेडी Fe2 प्लस है, 10 ml ऊपर से ब्यूरेट ने आपने ऐड किए थे, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट खत्म हुआ था, फिर 20 हुआ, अभी 20.1, राइट, मतलब 10 प्लस 10.1 दैट बिकम्स 20.1। फिर से आप ये कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था लास्ट टाइम बाय यूजिंग द N1V1 फॉर्मूला।
here the answer will be 10 upon 0.1, that is 100, and once you take by applying the next equation, अभी यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन भी इन्होंने कॉपी किया है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बिकॉज ये फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूले में आप पुटअप करेंगे वैल्यूज, ओके 1.44 इसका वैल्यू है, देन 100 का लॉग देखेंगे 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, द ई सिस्टम विल बी द, बहुत ज्यादा आ रहा है सिस्टम 1.322 वोल्ट। देन सिमिलरली व्हेन यू प्रोसीड, अगर 1 cm³ ज्यादा डालते हैं तो आप फिर से वही करेंगे, सेरिक सेरस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। वंस यू कैलकुलेट दैट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, उसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन applying next equation again, पुट अप करेंगे। अब यहाँ पे आने वाला आपका आंसर 10 है, इसका आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी एक्सेस जैसे कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो वहां पे जो होने वाला चेंजेस है दैट यू हैव टू मॉनिटर। यू कैन सी हियर कि आपका जो है पहले इंक्रीज होता गया, फिर सडन इंक्रीज हुआ, फिर बाद में कांस्टेंट होता चला जा रहा है। अगर इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कांस्टेंट मिलेगा वैल्यू, मतलब डिक्रीजिंग लेवल में रहेगा। तो यू विल गेट दिस शेप ऑफ द ग्राफ। देखो आपने 0 के लिए कुछ भी नहीं है, 1 के लिए 0.715 था, देन उसके बाद में 3 के लिए निकाला है, 5 के लिए निकाला, 9.9 के लिए निकाला, 10 के लिए निकाला, 10.1 के लिए निकाला और 11 के लिए निकाला। वंस यू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट द एस शेप को। पहले क्या है, देयर इज अ लीनियर इंक्रीज, then the sudden increase towards the equivalence points, and then the after the equivalence point it at the equivalence, after the equivalence point it becomes the constant। ये आया समझ में? कैलकुलेशन समझ में आया क्या? प्लीज रिप्लाई। उमर? नहीं सर, हमने नहीं समझा। कौन सा नहीं समझा बोलो, मैं वापस से समझाता हूँ। Which part you not understood? तंजील? स्टार्ट से ही नहीं समझा आज। कहाँ से नहीं समझा? स्टार्ट से नहीं समझा, पहला कल का पार्ट समझा था? सर कल ना नेटवर्क इशू था तो हम तो बहुत कम टाइम के लिए थे। अच्छा, तो फिर आपने वीडियो सर रिकॉर्डेड समझा देखा नहीं था? था फिर भी सुनकर। ओके, लिसन हियर, अभी कोई भी टाइट्रेशन हम चालू करते फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। समझ में, जैसे कि आंसर वहाँ से रिप्लाई देना है आपको, समझा या नहीं समझा। देखो मैंने कल एग्जांपल दिया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जैसे हम करते हैं सक्सेनिक एसिड NaOH का, तो हम क्या करते हैं 10 ml सक्सेनिक एसिड को पिपेट आउट करते हैं और NaOH रेट में रहता है और हम टाइट्रेट करते हैं सेंटीमीटर और इंडिकेटर डाल के। तो यहाँ पे ये जस्ट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन स्टडी करना है हमें, ओके, मगर ये पोटेंशियोमेट्रिकली है। और इसका पोटेंशियोमेट्रिकली इसलिए इसका हम EMF कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पहले थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल रहता है हर चीज का, ध्यान में रखो। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल रहता है, जैसे कि अभी सक्सेनिक एसिड 0.1 नॉर्मल है और 0.1 नॉर्मल का NaOH है, तो उसके लिए लगने वाला आंसर 10 है, ये पहले थ्योरेटिकल निकालते हैं। मगर प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो कुछ गड़बड़ होने के बाद आपका आंसर रॉन्ग भी आता है, समझ में। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यूज है दीज आर पॉसिबल, ये पॉसिबल है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अभी इसका ही ऐसे है कि सेम हमें ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे कि हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन में मैंने बताया कि 2 एग्जांपल हमें स्टडी करने हैं। एक टाइट्रेशन विद द दैट पर्टिकुलर योर
one electron system, titration curve of the one electron system and titration curve for the multi electron system. मतलब इधर एक ही इलेक्ट्रॉन का बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइट्रेशन सिंपल है कि फेरस सेरिक का टाइट्रेशन लिया है। फेरस सेरिक के टाइट्रेशन में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज कितने से होने वाला है, 1 से। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1 दिया है, इसलिए ये क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम टाइट्रेशन हुआ। अब यहाँ पे इसका ई सिस्टम निकालना है। तो ई सिस्टम कैसे निकाले हम बाय यूजिंग द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जो है ये लास्ट ईयर हमने स्टडी किए हैं, नस्ट इक्वेशन को डिराइव भी किया है। ओके, नस्ट इक्वेशन क्या आता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल माइनस 0.05916 by n into the log to the base 10 activity of that particular substance in the reduced state divided by the activity of that substance in the oxidized state. ये जो चीज है that we have studied in the SY, we have derived the Nash equation. Okay, ये जो at 298 केल्विन है, 0.0916, अदरवाइज वो आता है 2.303 RT by NF. ओके, 2.30 RT by F का जो वैल्यू है दैट कम्स लाइक द 0.05916. ओके, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एक टाइट्रेशन आपको दिया 10 cm की, वो 0.1 नॉर्मल Fe2 प्लस सॉल्यूशन दिया है, उसका टाइट्रेशन 0.1 नॉर्मल सेरिक 4 सॉल्यूशन के साथ दिया है। अभी 10 ml Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना सेरिक लगने वाला है, 10 ml ही लगने वाला है। तो अभी हमें 4 केसेस स्टडी करने हैं यहाँ पे, इनिशियल पोटेंशियल, then potential before the equivalence point and potential up at the equivalence point and potential after the equivalence point. तो यहाँ पे इनिशियल में क्या है कि अगर आपने सेरिक 4 प्लस जो ऐड ही नहीं किया तो पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रहेगा। जो कुछ भी ऑक्सीडाइज होंगे वो इटसेल्फ रहेंगे। मतलब क्या है कि Fe2 प्लस आपको पता है ये वाइब्रेंट है, ये कभी भी एक स्टेट में रहता नहीं सही से। ऐसे में इट मे गो टू द Fe3 प्लस, ऐसे में उसमें ट्रेसेस रहेंगे प्रेजेंट सॉल्यूशन में। ओके, बट व्हाटएवर द दैट इनिशियल पोटेंशियल विल बी देयर, दैट विल बी द पोटेंशियल विल बी द इनसिग्निफिकेंट। ओके, जो कुछ भी पोटेंशियल आने वाला है वो क्या होने वाला है, इनसिग्निफिकेंट रहने वाला है। तो अभी पोटेंशियल बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अभी इसमें हम कितने केसेस कंसीडर किए, 1 cm क्यूब, 3 cm क्यूब, 5 cm क्यूब इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब 9.9 cm क्यूब। ऐसे 4 केसेस हमने बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट स्टडी किए। इसमें एक पहला वाला केस ऐसा है कि जब 1 cm क्यूब ऑफ द 0.1 नॉर्मल सेरिक का सॉल्यूशन ऐड करने वाले हैं हम, तो हमें क्या चाहिए कि अभी यहाँ पे अपना पहला जो पोटेंशियल रहने वाला है स्टार्टिंग में, जब तक Fe2 प्लस बीकर में है तो पोटेंशियल किसकी वजह से रहने वाला है, कन्वर्जन ऑफ Fe2 प्लस इनटू द Fe3 प्लस, उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है Fe2 प्लस का। आ रहा है समझ में तंजील? हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या होने वाला है, Fe2 प्लस विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू द Fe3 प्लस, बराबर है। उसको कैसे होने वाला है, तो बाय ऊपर से सेरिक डालने वाले हैं हम लोग, बराबर है। C4 प्लस सेरिक है, उसको ऐड कर रहे हैं हम, सेरिक को ऐड कर रहे हैं, तो सेरिक क्या देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करने वाला है, Fe करने वाला है। समझ में? तो ये जो अभी यहाँ पे जो है 1 ml ऐड किया मैंने, तो अभी मुझे Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है और Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। कैसे निकालना है, तो बाय यूजिंग द N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बराबर, अभी क्या किया है, 1 cm क्यूब हमने ऐड किया सेरिक, कितना है, 0.1 का है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 11, बराबर है। अभी Fe2 प्लस कैसे निकालेंगे, हमने 10 ml बीकर में लिया था, अभी उसमें से क्या होगा, 1 ml कम हुआ, क्योंकि 1 ml क्या हुआ, Fe3 प्लस फॉर्म हुआ, तो 9 into 0.1 डिवाइडेड बाय 11, बराबर है। तो अभी इसका रेशियो लेना है, रेशियो लेना है तो हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यू कैन सी हियर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस थिंग्स, ऊपर के चीज को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द आंसर 9। अभी हम नस्ट इक्वेशन लेंगे जो ऊपर हमने लिखे थे, Fe2 प्लस Fe3 प्लस सिस्टम वाला हम नस्ट इक्वेशन लेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, अभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ई सिस्टम कितना आएगा, 0.715। ऐसा ही कैलकुलेशन 3 cm क्यूब के लिए करने वाले हैं। 3 cm क्यूब अगर हमने सेरिक उसमें ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 13, राइट। तो फिर हम इसके ऊपर से Fe3 प्लस Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग्स। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी ये 3 cm क्यूब का समझा, वैसे ही सेम ईएमएफ निकालेंगे आप।
ओके हाँ सर। अभी 5 cm क्यूब का सेम केस एप्लीकेबल 5 cm क्यूब। अब ये 5 cm क्यूब क्या है? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। आज में अभी हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्यों है? क्योंकि 10 ml Fe2+ लिया है। 10 ml Fe2+ को ऑक्सीडाइज करने के लिए 10 ml Ce4 लगने वाला है, मगर अभी हमने यहाँ पे कितना ऐड किया है? 5, इसलिए क्या हुआ? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट हुआ। सेम इसका कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर सॉल्विंग सिंप्लीफाइंग दिस थिंग्स। हम इसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं तो आपको ये आंसर्स मिलते जाएंगे ऐसे में। देन नेक्स्ट इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस थिंग्स यू कैन सी हियर आंसर मिलेगा आपको 0.771। आपको एक ट्रेंड पता चल रहा होगा कि जैसे सेरिक का वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है? ई सेल बढ़ते जा रहा है। अभी इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप में, ओके। प्लॉट टाइट्रेशन कर्व फॉर दिस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जांपल रहेगा सेरिक फेरिक के लिए, सेरस फेरस के लिए, सेरिक फेरस के लिए टाइट्रेशन का एग्जांपल दिया रहेगा। और कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा, ओके, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा। ऐसे में मतलब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट में आपको बोलेंगे या इधर स्पेसिफाई करके बोलेंगे या डायरेक्टली पूछा जाएगा, समझे? तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पूछ सकते हैं। इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट बाय एडिंग द 1 cm क्यूब, ऐसा व्हाटएवर मे बी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे केसेस हमने लिए हैं ऐसे में। तो इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट 9.9 cm क्यूब अभी सेरिक हमने ऐड किया है पिकर में। तो क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम हुआ 19.9 ऐसे में। अभी यहाँ तक 0.1 cm क्यूब क्या है? Fe2+ बचा है, इसलिए हम किससे ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं? फेरस फेरिक के सिस्टम से उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ई से आप ये सब सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट आंसर ई सिस्टम इज इक्वल टू 0.089। आपको पता चला होगा कि एब्रप्ट चेंज हो गया है ईएमएफ में। पहला स्लाइड चेंज हो रहा था, बराबर है, पॉइंट से चेंज हो रहा था। अभी आप देख रहे 0.771 है और ये 0.881 है, अभी ये एब्रप्ट चेंज होया। इसका मतलब क्या है कि अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नजदीक है, इसलिए इन द विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। आई पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे 10 cm क्यूब अपने 0.1 नॉर्मल सेरिक का सॉल्यूशन ऐड किया है, बराबर है। अभी 10 cm क्यूब हो गए दोनों भी सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इज दैट, अभी यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा ये दोनों सिस्टम्स के लिए होगा ना। जैसे कि आपका फेरस फेरिक है और सेरस सेरिक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों के ई सिस्टम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो वो क्या मिलेगा? 2 ई इक्विवेलेंस पॉइंट। जो भी ई सिस्टम है दैट विल करस्पॉन्ड टू द इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। तो उसको ऐड अप करेंगे। ये ऐड करने के बाद यू विल गेट लाइक दिस, ओके। ये तो ब्रैकेट में आएगा, इतना बड़ा ब्रैकेट मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही रखा है, ओके। ये कॉमन लिया और इसको एड अप किया है, ओके। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट नाइदर द एनालाइट नॉर द टाइट्रेट रिमेन्स इन एक्सेस, मींस ऑल द Fe2+ आयंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। देयरफॉर इसका मतलब क्या है? जितने Fe3+ है उतने Ce3+ होना चाहिए, जितने Fe2+ है उतने क्या होना चाहिए? Seric4+ होना चाहिए। ये समझ रहे तंजील, उमर, तस्कीन? हाँ सर। समझ में आया? अभी इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा? सब इक्वल रहेंगे, मतलब जितने Fe2+ है उतने सेरिक रहना चाहिए, जितने Fe3+ है उतने Ce3+ रहना चाहिए, मतलब जितने फेरिक है उतने सेरस, बराबर। हेलो, हाँ सर। ओके ओके ओके। हाँ, तो अभी इधर क्या किया हमने? अभी ये 2 इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, तो 2 से इसको बाद में डिवाइड करेंगे। ये तो बाद में ये अभी ये कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये पार्ट क्या होगा? कट हो जाएगा। और log 1 आपको पता है क्या आता है? log 1 0 आता है, तो ये 0 होने के बाद में बचने वाली टर्म क्या है? 2 इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू E0 Fe3+/Fe2+, E0 Ce4+Ce3+। तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू, दोनों को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड ये में पता है Fe का भी और सेरिक का भी, तो 0.771 + 1.44 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है 1.105 वोल्ट। आई पोटेंशियल बियॉन्ड द और आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ पे 2 केसेस लिए, अगर 0.1 cm क्यूब से एक्सेस होता है, अभी आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या रहने वाला है सॉल्यूशन में? सेरिक रहने वाला है, सेरिक सेरस कॉम्बिनेशन रहेगा, बराबर है। तो यहाँ से अभी Fe चला गया है, यहाँ से Fe खत्म हुआ है। एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट हुआ तो Fe का कन्वर्जन खत्म हो गया। तो अभी सेरिक को लेंगे हम, वो नेक्स्ट इक्वेशन लेके हम क्या करेंगे? ई सेल कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन फिर से वैसे ही निकालना है। Then you can substitute this and you will get a E system.
वैसे 11 cm³ के लिए अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सेरस सेरिक का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, अभी हम आयन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो अभी यहाँ पे क्या है 0.1 ml ज्यादा हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना है 20.1, क्योंकि वहां पे 10 ml पहले Fe था, उसमें 10 ml ऐड किए, बराबर है, 10 में 10.1 ऐड हुआ तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 20.1। यहाँ पे सेरिक कितना ml ऐड किया आपने 0.1, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 डिवाइड बाय 20.1, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, तो आप N1V1 इज इक्वल टू N2V2 फिर से यहाँ पे यूज किया है। अभी यहाँ पे सेरिक 3+, अभी आप बोलेंगे यहाँ पे ऐसा कैसे आया, बराबर है ना। Okay, see in the seric 3+ 10 ml is already there into 0.1 divided by 20.1, seric 3+ भी 10 रहने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि अगर Fe2+ ही नहीं बचे होंगे तो seric 3+ कहां से फॉर्म होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट करेंगे, उसको पुट अप करेंगे, आया समझ में। फिर से यहाँ पे 1 ml ज्यादा 11 ml ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम 21 होता है, मगर सेरिक 3+ का वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे Fe2+ है ही नहीं। गॉट दैट पॉइंट तंजील? हाँ सर, समझे। ओके, तो ये सारे EMF को एक साथ किया तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसे में आए? ये आपका ए शेप कर्व है फॉर दिस हाँ पर्टिकुलर। ओके, थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर, वी विल मीट एट 11 AM।